देखिए, ऑफिशियली कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि जयशंकर जी अभी अमेरिका में हैं और मैं समझता हूं इस सारे मसले का संज्ञान वो वहीं से ले रहे हैं, उसके ऊपर पूरी निगाह रख रहे हैं। परंतु मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के ऊपर अगर आप कल रात को उनकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखें तो उन्हीं के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत बुरी तरह से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को घेरा है। उनके शब्दों में दैट योर अनसब्सटेंशिएटेड, आपने जो अनसब्सटेंशिएट इल्जाम लगाए हैं भारत के ऊपर, उन्होंने आपने बिना किसी सबूत के अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के गलत बयानी को लेके एशिया की सबसे बड़ी ताकत और हमारे एक बहुत बड़े साथी मुल्क को आपने इस अपनी मैं समझता हूं नासमझी के चलते हुए आपने उनको नाराज किया है और सारी की सारी पार्लियामेंट ने उनका साथ दिया और पूरी तरह से वहां पे प्राइम मिनिस्टर की विद इन द पार्लियामेंट बड़ी निखेधी वहां पे हुई है। तो मैं समझता हूं बड़ा जल्दी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अपनी गलती समझेंगे कि कोई भी जिम्मेवार जो देश है का नेता जो है उस देश का, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को में ध्यान में रख के देश की फॉरेन पॉलिसी को गिरवी नहीं रख सकता। और ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक उन्होंने डिप्लोमेटिक और कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है। आपको क्या लगता है कि ये बिकॉज देयर आर दिस रिपोर्ट्स कि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, खालिस्तान को सपोर्ट पाने के लिए दिस मूव हैज बीन डन एंड देयर इज अ 5 आई क्लब रिपोर्ट एज वेल इन अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की है। So how do you see this whole situation? I virtually see Mr. Prime Minister Trudeau as a pawn in a very large geopolitical game. This rise of India is not being taken too kindly by the well-established powers that were. There is a shift, a tectonic shift going on in the geopolitical sphere. This is what happened in G20. Everybody was expecting that there will not be any consensus on the issue of Ukraine and Russia. But I think Prime Minister Modi and our diplomats have achieved the almost impossible. So that itself, they feel a bit rattled. And I think Trudeau is just a mere pawn. And I think it also suits him, given his immediate contingencies that he has to depend. He's in a minority government. And he is depending on the parties which are very much vocal about separatism, and they are supporting terrorists openly. So he is playing to their tune, but at the cost of foreign policy of his own country. I think Canadian will realize what blunder he has done, and I think he also, for his own sake, would realize his mistake, and I hope for the sake of Canada as well as for India also, because we have been very strong. We have had this issues about safety concerns all along, but we want a diplomatic relation, a strong, positive relationship with every. Our message in G20 was what? Vasudev Kutumbakam. We believe in a word family thing. So we will do everything on our part, but nobody can tell India how to take care of our sovereignty. We are very capable. We do not believe in extrajudicious kind of killing. We do it openly when we have to do it. We went into Balakot, and I think that's a living example. So I think they should take note of, but this was, I think, in the pipeline. Whenever a new power arises on this geopolitical sphere, all sort of allegations are made to undercut the popularity and the credibility of a nation. And one factor which I think everybody is missing in this big game, I think it's not just Five Eyes. There's a sixth one also, which is even more prominently looking at and maybe manipulating the situation. If you look in Canada, it is not just the Indian diaspora, which is maybe they are 1 or 2% there also. The largest community there, immigrant community in Canada, which one is it? It is Chinese. And they have such a financial clout. Our people are maybe still working at the lower counter level. They are the one who are calling the financial shots in Canada or even in America. So
they are somewhere because they want to settle scores about India joining hands with America. America is also playing its own old games. They are trying to do this double standard, which I think our Foreign Minister Jaishankarji has rightly said that there is a lot of people who still have these double standards. They have not given up those. But this is all part of diplomacy. This is all, when you grow up, when you go into the big league, you have to be prepared. And I think we are very well confident to take care of our national interest. Our national interests are, for us, paramount. Our sovereignty is paramount. Yes, we can take care of our sovereignty also. If Mr. Trudeau is concerned about his sovereignty, we are, and we are not blaming. We can take care of our sovereignty ourselves. आप भी ये मानते हैं कि कनाडा जो है वो सेफ हेवंस है गैंगस्टर्स के लिए या क्रिमिनल्स के लिए, because many of them are there. It is there. It is definitely being run. All these people, look why Kanishka happened. I don't want to go into his family lineage. I don't want to bring Mr. Trudeau's father. He was there when Mrs. Indira Gandhi had spoken to him about these people, Panjwars and all, who were responsible of bombing of Kanishka. He didn't act, and that resulted in about more than 300 people who lost their life because of that. Nothing happened of that. The kind of seriousness now he is putting up, that I'm taking these charges very seriously. I wish his father had also taken those concerns of India at that time. He could have said, I think this blood of these 300 plus people lies on the hand of the Canadian government. Their folly, their mistake, their oversight of these things, taking them lightly. But I think they are nurturing these terrorists at their own peril. They should learn lessons from Pakistan. They are the people who will bite the hand that feeds them. Today they are asking for separate states in India. Tomorrow they will be asking a separate state within Canada. They would say you have plenty of land and you have such a less population, so might as well carve a separate state there also. I think they are playing with fire, but I hope for the sake of both the countries that this issue is resolved amicably and our relations are back on even keel sooner than later. और अगर पंजाब के मसले की बात करें, आपकी तरफ से एक इशू और उठाया गया है, आपने धन्यवाद किया है गवर्नर का कि जो डेट वाला इशू है पंजाब का, आपने थैंक्स किया है गवर्नर को ये मुद्दा उठाने के लिए. बिल्कुल, देखिए जवाब तो ना तो आना था ना ही आया, बिकॉज मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार की कारगुजारी को बहुत अच्छी तरह से. ना तो उनके पास जवाब है, जवाब देखने बजाय अगले बगले झांकने लग जाते हैं, या वो गवर्नर साहब के खिलाफ ऊल जलूल बातें जो कि अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो किसी को शोभा नहीं देती. परंतु जो गवर्नर साहब की चिट्ठी ने की है मैं उसको दाद देता हूं. उन्होंने ही हैज सेट अ नैरेटिव, ही हैज सेट अ नैरेटिव फॉर पंजाब, पीपल ऑफ पंजाब. क्योंकि ये सवाल जो उन्होंने पूछा था ये पंजाब के लोगों को पूछना चाहिए था. आज उनकी इस चिट्ठी के बदौलत सारा पंजाब, कल सिर्फ मैंने नहीं, मेरे देखने के बाद लोग दूसरी पार्टीज ने भी उसके ऊपर लाइव की फेसबुक पे किए जा रहे थे. सब आज सिर्फ फेसबुक पे नहीं, गांवों की चौपाल के अंदर भी ये सवाल उठने लगे. भगवंत मान जी जैसे अमेरिकन फ्रेज मैंने कल कह रहा था, वेयर इज द मनी हनी, वेयर इज द मनी मान साहब. आपने 1.5 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया. तो उस बात के लिए मैं गवर्नर साहब का आभारी हूं कि उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी है पॉलिटिक्स को. पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन दीज इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज. आम आदमी नहीं समझता फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जीडीपी, जीएसडीपी, ये उनके लिए ये दीज आर फॉरेन इश्यूज. परंतु जब मैं आज ये बताता हूं, इन्होंने पिछले 120 दिनों के अंदर 12,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है. दैट मीन्स हर रोज 100 करोड़ रुपया भगवंत मान की सरकार कर्जा ले रही है. पंजाब के लोगों ने ये बदलाव जो लिया है बड़ा महंगा सौदा लिया है. ये बदलाव 100 करोड़ रुपए रोज का पड़ रहा है इनके ऊपर. 100 करोड़ रुपए रोज का बदलाव है. मैं नहीं समझता कि पंजाब के लोग ऐसी बदलाव के लिए जब गांव में जाएंगे तो भुगतना पड़ेगा इनको. किसी पंजाबी ने इतना महंगा बदलाव नहीं सोचा था, परंतु अनजाने में की हुई. कहते लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है. और जब मैं सदियों की बात कर रहा हूं, उसी में देखने की एक और बात है, ये मसला सिर्फ 100 करोड़ रुपए रोज का नहीं है. जब से पंजाब बना है, पंजाब हरियाणा अलग हुए हैं 1966 से 1966 ऑनवर्ड्स, सारी सरकारों ने मिलकर आज तक
टोटल जो कर्जा पंजाब सरकार के ऊपर है वो 2,82,000 करोड़ रुपए का है। और जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं, पिछले साल 34,000 करोड़ इन्होंने कर्जा लिया पंजाब सरकार ने, इस साल भगवंत मान जी इसी रफ्तार से 35,000 करोड़ रुपया करेंगे। और जब तक इनकी टर्म पूरी होगी 5 साल की, 1,75,000 करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा और चढ़ा जाएंगे। जो काम 50-55 साल में नहीं कर पाए बाकी सरकारें, वे 5 साल में कर देंगे। ये इनके करतूतें आप देख लीजिए। ये सौदा चुकाएगा कौन? हमारी जनरेशन भुगतेंगी, लोग भुगतेंगे। लोगों के पैसा ना भगवंत मान जी ने वापस करना, ना सुनील जाखड़ करेगा, परंतु हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको भुगतेंगी। और यही मसला खत्म नहीं रहता। पंजाब क्यों पिछड़ गया? इस 2,82,000 प्लस 1,75,000 करोड़ रुपए को एक तरफ रखिए। हमारी पंजाब की जो PSUs हैं, पावर कॉरपोरेशन, हमारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, हमारी पंजाब फाइनेंस कॉरपोरेशन, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा वो अलग है जिसकी गारंटीज पंजाब सरकार ने दी हुई है। तो वो गारंटी एक ऑनर कौन करेगा? सुनील जाखड़ करेगा? नहीं, पंजाब के लोग करेंगे। भगवंत मान जी तो उस समय तक पता नहीं कहाँ होंगी, आम आदमी पार्टी भी होगी या नहीं होगी, परंतु पंजाब ने यहीं रहना है। और ये पंजाब के लोगों को सवाल करना सिखा दिया गवर्नर साहब ने। मैं इस बात की उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। एक मनप्रीत बादल के ऊपर भी एक जो केस है, विजिलेंस ने FIR रजिस्टर कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि इज इट अ पार्ट ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स या कोई सच्चाई है इस केस के पीछे? इट्स व्हाट यू कॉल अ रेड हेरिंग। जब भी भगवंत मान जी से कोई सवाल पूछता है, मैं समझता हूं कि ये जो FIR हुई है इसका जो अगर ओरिजिन ट्रेस करें तो वो गवर्नर साहब ही मिलेगी। क्योंकि गवर्नर साहब ने सवाल ऐसा पूछ लिया भगवंत मान जी से, उसका जवाब भगवंत मान जी को नहीं आएगा, तो इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने FIR दर्ज कर दी। अब 15 दिन आप यही सवाल पूछोगे ना कि आज के बाद, आज ये 50,000 करोड़ का मुद्दा बैक बर्नर पे चला जाएगा, आने वाले 10 दिन यही बातें रहेगी भी कब क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, कब कार्रवाई इस पे होती है, नहीं होती है, इसी को लेके सारा पंजाब बात करने लग जाएगा। और मैं समझता हूं ये एक बड़ी घिनौनी चाल है राजनीति में। आप फेस कीजिए अगर आपके पास सबूत है। अगर करप्शन, नोबडी कैन कंडोन करप्शन, आई डोंट, नोबडी डज, पर ये एक टूल की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लास्ट सवाल कि अमित शाह का दौरा है कल पंजाब में, और आपने आज एक ट्वीट भी किया है कि चाहे फिरोजपुर में जाने, लेकिन उसका टेंडर जो है सैटेलाइट PGI का वो हो चुका है। और दूसरा, अमित शाह कल फिजिकली पंजाब में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जुड़ेंगे। मसला अमित शाह जी का आने का नहीं, अमित शाह जी तो आ ही रहे हैं। मेरी चिंता है कि क्या हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी पार्टियां खत्म करके पहुंच जाएंगे या नहीं। आज भी उदयपुर में बैठे हुए हैं, अभी पार्टी चल रही है, हमारा बात उठाएगा कौन? आई ओनली होप द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दी सेलिब्रेशंस डू नॉट इम्पैक्ट आवर केस बीइंग टेकन अप इन द नॉर्दर्न जोनल मीटिंग। अगर मैं चाहता हूं कि भगवंत मान जी समय रहते यहां आ जाएं, फाइल सारी ध्यान से देख लें, बिकॉज मुझे खुद इस बात की, क्योंकि ही इज नॉट अकेले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, परंतु एक गलत बयान, बिना सोचे समझे बेतुका बयान भगवंत मान जी का पंजाब को बहुत भारी पड़ता है और पड़ रहा है। पिछली जोनल मीटिंग जो पिछले साल जयपुर में हुई थी, वहां पे भगवंत मान जी ने आज तक वो कोई तर्क नहीं दे पाए, बिना बेसंगत बयान जो उन्होंने दिया अमित शाह जी से। उन्होंने, हमारा चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब के चंडीगढ़ के लिए उन्होंने पंजाब में से कहते हैं हमें 10 एकड़ जमीन दे दीजिए, मैंने नई विधानसभा बनानी है। किसके लिए बना रहे भगवंत मान जी? ये ली कारबूजी है, यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग, उसको छोड़ के आप अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, अपने पंजाब में जमीन आप मांग रहे हो। ये क्या क्या तर्क संगत बात की? उसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि चाहे छोटा भाई कह लो, चाहे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं हमारे शरीके हैं, आर जो है वो, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, वो उसको परसू कर रहे हैं। हमें रोज उनकी चिट्ठी गवर्नर साहब को चली जाती है, कहां पे जमीन दे रहे हो, कहां में जमीन मिलेगी। ये मुद्दे फिर ये कल क्यों उठे अमृतसर की उस मीटिंग के अंदर? ये मुद्दा उठा क्यों? भगवंत मान जी ने एक बेतुका बयान दिया। अगर वो
कल वहां सवाल उठाएंगे, खट्टर साहब जरूर पूछेंगे इनसे कि आप ही तो मांग रहे थे, आपने भी मांगा, मैंने भी मांग लिया, बुराई मेरी क्या है। सो मेरी बेनती है भगवंत मान जी समय से यहाँ आ जाएं, अपने ऑफिसर्स के साथ बैठ के सारा मसला समझ लें। पर मुझे यह भी चिंता है कि कहीं बेचारे गाज ऑफिसर्स पे ना पड़ जाए, फाइलें देखते नहीं, जिसका नतीजा मिस्टर डी के तिवाड़ी जैसे एक सीनियर आईएएस का इन्होंने सस्पेंड किया है। गलती इनकी थी। आज हमारे एडवोकेट जनरल विनोद घई साहब को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बेनती करूंगा कि इनसे, केजरीवाल साहब से भी और भगवंत मान जी से, कहना सारी उम्र गालिब यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। भगवंत मान जी गलती अपनी सुधारिए, ये पार्टियां मनानी बंद कीजिए। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं पार्टी के, पार्टी तो शायद आज खत्म हो जाएगी, पर कल दोपहर तक उसके आफ्टर इफेक्ट भी खत्म हो जाएं, ताकि पंजाब का जो केस है बड़ा मजबूती से पुटअप किया जा सके।